Hello everyone. Let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform and academy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So hello my dear scholars, I am GVJ Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction about me. Let's crack 10th CBSE by using the referral code VMCBSE. I have done my B.Ed after finishing my BSc. I have more than 5 years of teaching experience. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. Let's crack 10th with India's CBSE class 10th with India's largest learning platform by taking the Plus subscription so that you can access unlimited live and recorded classes from India's best educators. So if you take the subscription, what are the benefits? Let me tell you in brief. Daily live classes you have, structured courses, live tests and quizzes which will evaluate your preparation by giving a detailed analysis of your performance, unlimited access with one subscription, all the subjects you can learn live or recorded. सब benefit है ना. देखो, when you are using my code VMCBSE, I'll give you instantly 10% of रिडक्शन का गिफ्ट मैं दे दूंगी आपको. तो 1 month का आपका हो गया 2250 रुपीज़. 6 months course it will be 9000 rupees. 1 month course it will be 13500 rupees. 24 months course it is 22500 rupees. 36 months course it is 28800 rupees. Special classes always it is going free only. So now it's time to go for tune yourself for live classes with all the top educators for a better preparation. So you can prepare with the top educators. These are few of the top educators who are going to deal in this platform with a comprehensive syllabus of mathematics, social science, Hindi, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. We are in touch with Telegram app also. So our channel name is Quest 10 CBSE, where you will get all the updates. On Academy Learning app, you need to install from the Play Store. Then you have to go for CBSE class 10th. Then you have to go for subscription by using the referral code VM CBSE. तो आज का हमारा टॉपिक है नीट लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर बायो. हाउ टू प्रिपेयर. ऑलरेडी it is ahead. Exams are ahead. 13th of September, you people are going to appear for NEET एग्ज़ाम. अगर स्टूडेंट ही देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है. शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो शेयर करो दूसरे पेरेंट्स को, वो भी अपने बच्चों को बताएंगे. आप भी अपने बच्चों को बताइए. अगर कोई टीचर देख रहा है वो भी शेयर करे दूसरे बच्चों को. ओके, लेकिन शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट लास्ट मिनट प्रिपरेशन ओनली विल चेंज द mindset of children, because most of the children what they do, they just give up in the last moment. वो ना वहाँ तक आ जाते हैं. वो जो लास्ट वीक रहता है वहाँ बच्चे बहुत डिफिकल्ट फेस करते हैं. पूरा 2 साल से उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन ये जो लास्ट 1 week है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. दैट्स व्हाई आई केम विद दिस आइडिया दैट लास्ट मिनट प्रिपरेशन हाउ इट मस्ट बी, how the parents also must be supportive to the children. ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ. ऑलरेडी कल मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स मैंने दिया. उससे पहले का भी वीडियो है. लास्ट मिनट का टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए 1 week का. so hope you will watch that video also. So definitely you are going in this small tiny sessions are going to definitely help you for you people. Okay, so let us start. So the NEET exam, what is this NEET exam? The National Eligibility Cum Entrance Test. It is the only entrance test for the admission of MBBS. MBBS का एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में ये एक ही एग्ज़ाम है जो सारे बच्चे लिखते हैं.
तो सारे बच्चे लिखते हैं एमबीबीएस के लिए। इसका डिफिकल्टी लेवल भी वैसे ही बहुत हाई रहता है, डिफिकल्टी लेवल। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल से जितना भी आपने प्रैक्टिस किया उसका रंग तो जरूर आएगा। ओके, सो दिस इज द वे द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द examination is high, and only those who have prepared for the examination seriously can clear it. Since the examination for 2020 has been postponed several times, the need to stay focused has increased. जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये जो लास्ट वीक है, आज ऑलमोस्ट मंडे है, मंडे से सैटरडे तक आपको आप जो करेंगे वही आपका रिजल्ट होगा। जितना पूरा साल का प्रिपरेशन एक एक तरफ और ये लास्ट वीक का प्रिपरेशन एक तरफ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। पेरेंट्स भी आप सपोर्ट कीजिए बच्चों को, टीचर्स भी हो तो सपोर्ट कीजिए। कभी भी उनसे कुछ और नेगेटिव एनर्जी के बारे में उनको सोचने ही मत दीजिए, नेगेटिव थॉट्स। बी पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव रह सकोगे दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस्ड स्टडी। You know all these things, so but still don't give up, don't give up. ओके, ये वाला समझ लो, डोंट गिव अप। नॉट एबल टू रीड एट द एंड, इफ यू want if you want result, if you want result, leave excuses। मैंने जो वीडियो बनाया उसमें पूरा टाइम टेबल दे दिया है, कैसे कितना आवर्स किसके लिए स्पेंड करना है इतना। जितना भी हो सके पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो। अभी बायोलॉजी है ना, सो नो डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट आप बायोलॉजी सॉल्व कर लो। नो डिस्ट्रैक्शंस फर्स्ट थिंग, नो no negative thoughts, no negative thoughts, always be positive। This is a very good energy, this will give you a very good energy, positive। हमेशा मुस्कुराते रहो, टेंस मत रहो। ओके, सो ये सब कुछ जो है ये सब ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिकॉज बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। यूज द टाइम प्रॉपरली, जो भी टाइम है नीट का, यूज द टाइम प्रॉपरली। ओके, जितने भी टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक बार सॉल्व करो। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें उतना डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स है स्ट्रेट है। एक बार आपने पूरा एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट मैप्स एक बार देख लो, सारे कॉन्सेप्ट मैप्स एक बार देख लो, फ्लो चार्ट्स एक बार देख लो, फ्लो चार्ट्स देख लो। जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स के नाम हैं वो सब एक write down in one place and fix it around the place where you are sitting. How I told about the physics, all the formulas, here bio also, all the terms and flowcharts and concept maps, just fix it around. Whatever the notes you have prepared till now, that notes is sufficient. Whatever the material you have till now, revise that every day 3 times. Revise each chapter for 3 times each. Revise each concept map for 3 times, revise each flowchart for 3 times, revise each chapter question answers, whatever you have once at a glance, just read out very fast, because already you people have studied this completely, already you people have finished the whole syllabus। तो अभी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी में उतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं आप पढ़ चुके हो, रट्टा मार चुके हो। Okay, so only the thing is last minute preparation is with by heart, by heart, दिल से पढ़ो बेटा।
जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जितने भी टीचर सुन रहे हैं, एक बार अपने बच्चों को सपोर्ट करो। रीड बाय हार्ट, ओके, दिल से पढ़ो, दिल से यू इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू वेयर द वाइट एप्रॉन एंड होल्डिंग द स्टेथोस्कोप। वही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेट करेगा। सो वट एवर द टॉपिक्स are there till now you have read, so most of the repeated questions around from 10 years onwards अगर एक एनालिसिस भी देख लें तो उसमें से 75 क्वेश्चंस जो है वो 12 टॉपिक्स में से ही आ रहा है, 12 टॉपिक्स में से ही रिपीटेडली आ रहे हैं। सो वो जो 12 टॉपिक्स है अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ देखो चैप्टर वाइज बॉटनी एंड जुअलॉजी का जो टॉपिक्स हैं, plant diversity, cell biology and division, cell division, plant reproduction, plant anatomy, biomolecule ecology, genetics biotechnology, plant morphology, plant physiology, biology and human welfare। 10 चैप्टर्स है बॉटनी में से, जिसमें से प्लांट फिजियोलॉजी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रिमेनिंग ऑल चैप्टर्स प्लांट डाइवर्सिटी आप कर लोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सेल बायोलॉजी भी बहुत ही इजी चैप्टर है, आप सारे बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बॉटनी पार्ट में से थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करो प्लांट फिजियोलॉजी में और जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों चैप्टर्स अगर एक बार पढ़ लोगे, दीज टू चैप्टर्स इफ यू रीड वंस, so that will be sufficient for the botany. Remaining all at a glance 3 to 4 times once revise, these two you revise for 5 to 6 times. So need chapter wise weightage of biology I am showing you here in the form of a pie chart. Biology is one of the those sections that must not be taken lightly, forming 50% of NEET question paper. Biology will help you to get enough marks to qualify the examination. डोंट टेक इट लाइट, सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ जाता है बट डोंट टेक इट लाइट, बिकॉज लाइट लेने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड इट इजीली, यू सॉल्व इट इजीली, सो इसको लाइट मत लो, इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इसी में से रहता है। ओके, 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इसी में से रहता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी 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 रिवाइज कर लिया करो। 3 से 4 बार एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया करो, काफी है। 3 आवर्स टाइम यू नीड टू स्पेंड फॉर ईच सब्जेक्ट, 3 आवर्स टाइम टू ईच सब्जेक्ट, उसके बाद 1 आवर टाइम फॉर 1 आवर फॉर वीक एरियाज, बस वीक एरियाज, बस खत्म हो जाएगा अपना काम। तो चैप्टर वाइज जुअलॉजी में देख लेते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पूरा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी आर द वेरी इंपॉर्टेंट, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दैट ओनली, almost every time from around 7 chapters are there from 12 topics are there, 12 topics, repeatedly you will get questions from this, repeated questions। कौन कौन से वो चैप्टर्स है दैट ऑल्सो आई टेल यू, डोंट वरी। एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल टिश्यूज बहुत छोटा सा पार्ट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑल्सो 1 क्वेश्चन यू विल गेट। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ओके, यहाँ पे भी 1 और 2 क्वेश्चंस। एनिमल हस्बेंड्री तो एक क्वेश्चन आएगा, एक या छोटा सा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी, अभी कोरोना का सिचुएशन है ना, इसलिए दे में आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आल्सो, so just you need to concentrate the topics whichever I am going to tell you, those topics are sufficient for practicing, so that definitely you will get the good score। okay, so biology no distractions, use the time properly, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम सफिशिएंट है आपके लिए, so use the time properly, first finish it off, okay, finish first, फिनिश दिस पेपर फर्स्ट। ओके, बायोलॉजी आपको फिनिश कर लेना है, नो नेगेटिव मार्किंग,
आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड कर सकते हैं वो भी एक सेशन में बनाऊंगी। सो आप लोग जरूर फॉलो करना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। सो यहाँ जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बार उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट चैप्टर है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी, सॉरी, जेनेटिक्स यहाँ है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हो गया आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ये हो गया आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी, ये हो गया आपका इकोलॉजी। ओके, उसके बाद है प्लांट डाइवर्सिटी, वेयर इज द प्लांट डाइवर्सिटी, ये हो गया आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्लांट डाइवर्सिटी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी ये आपका हो गया फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हो गया आपका सेवेंथ। ओके, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी ये हो गया आपका एट्थ। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ये हो गया आपका नाइन्थ पार्ट। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको गारंटी आएगा। एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका टेंथ पार्ट, टेंथ, सॉरी, एनिमल डाइवर्सिटी टेंथ पार्ट हो गया ये वाला, एनिमल डाइवर्सिटी नॉट एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसे जो जो टॉपिक्स हैं आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लो तो बहुत ही अच्छा यूज हो जाएगा आपका। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ये हो गया आपका 11th टॉपिक। एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सारे हार्मोन्स के बारे में आपको एक बार याद रख लो, वो चार्ट बना के आप लोग रख लो। हाँ, 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 9, आउट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 75% ऑफ द questions you will get from these topics. Okay, angiosperm, life cycle of angiosperms is another topic, life cycle of angiosperms। तो ये जो 12 टॉपिक्स है उसमें से आपका 75%, मोर देन 75% ऑफ द क्वेश्चंस विल कवर। ओके, so definitely if a child who is preparing partially also for the examination, so many days, actually it was continuously postponed, so most of the children you have concentrated all the areas you people have read, so you need not to worry, just concentrate this last week on these all 12 chapters, these 12 topics. If you revise it completely, definitely you are going to score a high marks, high percentage. So hope this is going to help you, this session is going to help you a little manner. So putting efforts is important than achieving something. How much effort you have done till now chodo, last month, last week performance makes a lot, and the day of the exam you have to concentrate, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, concentrate करो, अच्छा फूड खाओ, ज्यादा मसाला वाला फूड मत खाओ, so it may leads to indigestion and all। so ये पूरा प्लेन फूड खाया करो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा खाया करो, डेट्स वगैरह थोड़ा खाया करो। इफ यू ईट डेट्स नट्स एंड ऑल, दैट एनर्जी विल बी सस्टेन। ओके, so whenever you feel little means whenever you will feel little drowsy or anything, just get up, move little here and there। ओके, देर ओनली इन द हाउस, इन द स्टडी एरिया ओनली, थोड़ा सा सौंफ एक डब्बा में डाल के रखो, सौंफ और थोड़ा सा मिश्री वो खा लिया करो, दैट विल गिव द एनर्जी टू योर न्यूरॉन्स। ओके, सौंफ, सौंफ और थोड़ा सा मिश्री एक डब्बा में डाल के रख लो, जब भी आप वहां से मूव करते हो
एक चम्मच खा लिया करो, दैट विल एक्टिवेट, दैट विल गिव द एक्टिव एनर्जी। ओके, सो होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। सो ये चैप्टर्स आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, बस काफी है। ओके, थैंक यू वन एंड ऑल। सन एकेडमी ऐप आप लोग को इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद टेक द goal for CBSE class 10th and take the subscription. That subscription by using the referral code VMCBSE. Okay, so then the when you're applying my code, you will get 10% का instant reduction मिल जाएगा as gift. Then 1 month का 2250, 6 months का 9000, 12 months का 13500, 24 months का 22500, 36 months का 28800। ये वाला बेस्ट ऑप्शन है और ये वाला बेस्ट ऑप्शन है अगर आप 10th में हो तो। ओके, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है अगर आप 9th में हो तो। 9th एंड 10th का 24 मंथ्स का हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो होप यू लाइक इट दिस सेशन। जस्ट शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। सो जो भी बच्चे नीट लिख रहे हैं उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू वन एंड ऑल।